Assalamu alaikum ji, this is Saad Shahid and in this video we are going to discuss the topics related to atomic structure. So let's have a look on the learning objectives that is recommended from the Cambridge 5070 syllabus. So these are the learning objectives which we are going to cover in this video. So before jumping towards the structure of an atom, जो कि हमारा मेन टॉपिक है इस वीडियो का, before moving towards this we should know what is an atom. Although this is the definition that is not going to assess in your final exams in your CIEs, but as a science student, as a chemistry student, we should know what is an atom. So beta ji, atom is the smallest particle of an element. It is the smallest particle of an element. And the second point is very important. It is a substance that takes part in a chemical reaction and form a new compound through different bonds. What does it mean? Beta ji, atoms do react, not the compounds, not the molecules. आपने एक बड़ी कॉमन सी एग्जांपल पढ़ी भी होगी, सुनी भी होगी कि हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन एंड इट फॉर्म्स वाटर मॉलिक्यूल H2 और O2 रिएक्ट करता है और H2O बन जाता है. हाउ दिस इज सो? बेटा जी, ये मॉलिक्यूल्स रिएक्ट नहीं करते. हाइड्रोजन कंपाउंड और ऑक्सीजन का कंपाउंड, दे आर नॉट गोइंग टू रिएक्ट विद दिस और विद ईच अदर. होता क्या है, पहले ये एटम्स में कन्वर्ट होते हैं, ये एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं एंड दे फॉर्म अ न्यू कंपाउंड थ्रू डिफरेंट बॉन्ड्स. So now moving towards the structure of an atom. These tiny particles are known as subatomic particles. और इनमें कौन कौन से particles आ जाते हैं? Protons, electrons और neutrons. Very common subatomic particles. As you can see here, this picture, जिसमें बताया गया कि एक सेंटर आपको यहां पे नजर आ रहा है. This is the center that is known as nucleus. Inside the nucleus, these subatomic particles are present. कौन से subatomic particles? Only protons and neutrons. तो बेटा electrons कहां पे हैं? Electrons are present outside the nucleus in the shells. अब ये shell क्या होते हैं? ये जो आपको path नजर आ रहा है ना electron का, this one, बेटा जी, this is known as a shell. Okay? इस path को हम कहते हैं shell, जिसमें electron revolve करता है. Electron revolves around the nucleus in the shell. इसको हम कह रहे हैं shell. तो shell is actually the path in which the electrons are revolving. ठीक है? The path in which electrons are revolving. So these are the subatomic particles. इन पे charges क्या क्या होते हैं? Protons carry positive charge. Neutrons, नाम से ही पता चल रहा है, neutral. Neutrons are neutral particles. They are not having any charge on it. So that is having zero charge on it. Or electrons are negatively charged particles. Negative particles electrons हैं. ठीक है जी? So अगर आपसे पूछा जाए, एक एग्जाम का बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, relative charges और relative masses बताएं. ठीक है? अब relative charges में आपने बताना है प्रोटॉन पे क्या चार्ज होता है, that is +1. इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, that is -1. and neutrons are neutral particles, so that is not having any charge, तो 0 लिख देंगे. ठीक है? And here we have another key point. बेटा जी, the mass of proton and mass of neutron, that is approximately equal to each other. Approximately equal to each other. The mass of proton and neutron, please write down this point, that the mass of proton and neutron, that is equivalent to each other. Approximately equal होता है, तो relative masses की जगह पे हम लिख देंगे 1 और 1 because both have equal charge.
एंड इलेक्ट्रॉन बीइंग अ लाइटर पार्टिकल। कितना लाइटर पार्टिकल है? इन तीनों में से सबसे कम मास किसका होता है? इलेक्ट्रॉन्स का। सो इलेक्ट्रॉन का मास कितना कम होता है, कितना लाइटर ये पार्टिकल है? दैट इज 1840 टाइम्स लाइटर पार्टिकल देन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्लीज रिमेंबर दिस वैल्यू। इलेक्ट्रॉन is 1840 times lighter than proton और न्यूट्रॉन। सो बेटा जी, अगर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन के लाइटर होने की, सो ये 1840 टाइम्स कम है। अगर प्रोटॉन का मास 1 है तो बेटा इलेक्ट्रॉन 1 over 1840 हो जाएगा। ठीक है, सो व्हाट वी हैव टू मेंशन हियर 1 over 1840। एंड द सेकंड पॉइंट कि बेटा जी एवरी एटम हैज इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इसी वजह से तो हम कहते हैं एटम इज अ न्यूट्रल सब्सटेंस। एटम इज अ न्यूट्रल स्पीशी, एटम इज अ न्यूट्रल सब्सटेंस। क्यों न्यूट्रल है? बिकॉज उसके पास जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। इट हैज इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, सो ओवरऑल नेट चार्ज 0 हो जाता है। सो अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए व्हाई सोडियम इज अ न्यूट्रल सब्सटेंस, तो हम क्या कहेंगे? वी विल लुक इनटू द पीरियोडिक टेबल कि इसके पास कितने प्रोटॉन्स हैं। Yes, we can identify this thing from the periodic table, और periodic table से हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि किस एटम के पास कितने प्रोटॉन्स हैं। Let's have a look in the periodic table. मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा अभी सोडियम का कि सोडियम हैज हाउ मेनी प्रोटॉन्स। सो बेटा जी ये जो नंबर आपको नजर आ रहा है 11, दिस इज कॉमनली नोन एज प्रोटॉन नंबर। This is known as proton number, or it is known as atomic number. So proton number is actually the identification sign of an atom, of an element. अगर मैं कहता हूं कि एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो which atom is this? तो हम पीरियोडिक टेबल में 11th पोजीशन पे देखेंगे वो कौन सा एलिमेंट है। दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th एंड 11th। तो 11th पोजीशन पे वी हैव सोडियम। सो 11th पोजीशन एक्चुअली प्रोटॉन नंबर भी बता रहा है, और 11th पोजीशन पे फ्रॉम द प्रोटॉन नंबर वी कैन आइडेंटिफाई दिस एलिमेंट कि दिस इज सोडियम। सो हियर इज द की पॉइंट। वो क्या हम लिखेंगे कि प्रोटॉन नंबर इज गिविंग अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द एटम। एटम्स आर आइडेंटिफाइड बाय देयर एटॉमिक नंबर्स। ठीक है, और ये प्रोटॉन नंबर हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बता रहा है which are present inside the nucleus of an atom. ठीक है, so we have to complete this definition now. Atoms are identified by their atomic numbers which is equal to the total number of protons present in the nucleus. किस में मौजूद होते हैं? न्यूक्लियस में होते हैं। न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ओके, और सेकंड एक और नंबर आपको पीरियोडिक टेबल में नजर आता है, एज यू कैन सी हियर 23। सो बेटा ये जो 23 आपको नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एज मास नंबर। जो बिगर नंबर आपको यहां पे नजर आ रहा है ना, दैट इज मास नंबर, और इट इज ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियन नंबर। न्यूक्लियन क्यों कहा जाता है? बेटा एनीथिंग दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, इट इज कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियन। तो बेटा न्यूक्लियस में क्या क्या मौजूद है? वी जस्ट डिस्कस दिस थिंग बिफोर। न्यूक्लियस is actually containing protons and neutrons. तो बेटा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को collectively हम कहते हैं न्यूक्लियन. So that's why it is called as nucleon number. All right. So 23
is the mass number of the sodium. So इसका मतलब है we can identify the number of protons, the number of electrons and number of neutrons just by looking over the periodic table. अगर किसी एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं, so let's solve this question कि सोडियम में फाइंड आउट करें कितने प्रोटॉन्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और कितने न्यूट्रॉन्स हैं. तो एज वी हैव सीन कि उस पे नंबर एक मौजूद था 11 और एक था 23. सो बेटा 11 प्रोटॉन्स हैं इसमें, और जितने प्रोटॉन्स हैं किसी भी एटम में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं. सो इट हैज 11 इलेक्ट्रॉन्स एज वेल. सो न्यूट्रॉन्स कितने होंगे बेटा जी? दिस नंबर इज एक्चुअली द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. दिस 23 प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल्स टू 23. तो प्रोटॉन्स कितने हैं? 11 हैं. सो न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? n equals to 23 minus 11, so we can get 12. So in this way we can identify the number of protons, electrons and neutrons in an atom. ठीक है? Now I am giving you one question. This is what you have to solve. You can see uranium. This is the symbol of uranium element. 92 लिखा हुआ है और 235 लिखा हुआ है. There is another atom of uranium. These are two atoms. Two atoms of uranium. This is one atom and this is the second atom. ठीक है? Now atomic number क्या होता है? 92. 92 is the atomic number. So how many protons it has? इसमें कितने protons हैं बेटा जी? atomic number itself it is known as proton number. So 92 ही इसमें protons हैं. ठीक है? And this number is the bigger number ना. Bigger number होता है proton plus neutron. So that is mass number. So we have already mentioned this. 235 mass number है. So number of neutrons कैसे निकालें? 235 में से 92 माइनस कर दें. बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू. ठीक है? इनको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए एंड यू विल गेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन दिस वे. सो यहां पे एटॉमिक नंबर बताएं कितना है जी? दिस इज एटॉमिक नंबर, दैट इज 92. सो हाउ मेनी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वी हैव? सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालोगे? 238 minus 92, so it will give you 146. So hope so this question is clear to you now. Now there is another question, another type of question actually. आपको यहाँ पे लिखा हुआ zinc और you can see this number and examiner is asking कि how many protons, neutrons and electrons are present in this atom of zinc. तो बेटा जिंक के प्रोटॉन्स कितने हैं? यहां पे तो प्रोटॉन्स लिखे हुए हैं या नहीं लिखे हुए, हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? वी डिस्कस दिस पॉइंट अबव कि बेटा एटॉमिक नंबर इज एक्चुअली द आइडेंटिफिकेशन साइन ऑफ द एलिमेंट. तो पीरियोडिक टेबल में मैं देखता हूं जिंक कहां पे है, तो जहां पे जिंक मौजूद है वहां से वी कैन इजीली आइडेंटिफाई its atomic number, its proton number. So let's have a look in the periodic table now. So here we have zinc. तो बेटा जी जिंक का नंबर यहां पे क्या लिखा हुआ? 30. So बेटा जी it has 30 protons. So मैं यहां पे लिख देता हूं just for the ease 30, so that हमें दोबारा periodic table पे ना जाना पड़े. प्रोटॉन 30 हैं. इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? Every atom has equal number of protons and electrons. So 30 protons हैं तो 30 ही electrons भी होंगे. So how many neutrons it has? Neutrons को कैसे find out किया जा सकता है? 65 minus 30 कर दीजिए and you will get the number of neutrons, that is 35. So with this we completed this video. Now I am asking this question, so you have to answer this in the comment box.